Dear students, we have already discussed about mixture, solution, colloidal solution and suspension in video of part 1. In this video, we will learn about types of pure substances, physical and chemical changes, separation of the component of a mixture. So let us start. Type of pure substances. On the basis of their chemical composition, substances are divided or classified into two classes, element and compound. Elements are made up of metals, you can say atoms of same types, and compounds are made up of molecules. Actually, elements may be made up of molecule of same type. So, element. First one is element. What is element? This question is arise in your mind. So, element are the basic form. Elements are the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by a chemical reaction. There are 118 एलिमेंट्स रिपोर्टेड टिल डेट. 118 एलिमेंट अब तक खोजे जा चुके हैं. तो फर्दर एलिमेंट डिवाइड इनटू थ्री क्लास या थ्री टाइप्स: metals, non-metals and metalloids. Now in this chapter we are going to discuss the physical properties of metals, non-metals and metalloids. Physical properties, not chemical property. So let us start with metals. Metals are generally hard. आपने देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, gold, these all are the harder metals. But some metals are also soft, like sodium, potassium. These two metals are so soft that can be cut with knife. इसको चाकू से हम काट सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट हैं. ठीक है. Next physical property, they are solid. Metals are solid. All metals are solid, but one except mercury. Mercury is liquid at room temperature. Only the metal which is liquid in room temperature. Nearly 88 elements are metals, and in which only one metal, mercury, is liquid at room temperature. You have been observed in thermometer. आपने थर्मामीटर में देखा होगा. Next, they have luster. Luster means having metals having shiny surface. Their surface are shiny, चमकते हैं. Okay. When they are in pure form, जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर के गैसेस से कर लेंगे तो ये हो सकता है डल हो जाएं. ओके. नेक्स्ट, दे आर जनरली सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो इन कलर्स. ओके. They are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity because these metals have valence electrons, and these valence electrons can carry charges from one place to another place. But some metals like lead, mercury are poor conductor of heat and electricity. So best conductor of heat and electricity is silver, then copper, then aluminium. Okay. We have observed that in our houses
copper wiring, hanging wire is also made up of aluminum. Okay. Next, they are ductile. Ductiles means it can be drawn into thin wires. They can be drawn into thin wires. Gold is highly ductile metals. Gold is highly ductile metal. You can form 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर ऑफ अ गोल्ड, ऑफ अ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप बना सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, metals are malleable. Metals are malleable. It means they can be hammered into thin sheets. पतली पन्नियाँ बनाई जा सकती हैं. जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम के फॉयल होते हैं, पन्नियाँ होती हैं. सारे टैबलेट्स करीबन करीब एल्युमिनियम में रैप होते हैं. इसी तरह सिल्वर के पन्नी होते हैं जो मिठाइयों पे चिपकाए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, दे आर सोनरस. दे आर सोनरस. सोनरस मीन्स they making ringing sound when they beat hard या hit hard. ओके. ये जब किसी से टकराते हैं तो रिंगिंग साउंड, बेल की तरह, घंटी की तरह साउंड आता है. इसका मतलब है कि मंदिरों में जो घंटी है वो सारे मेटल्स के बने होते हैं क्योंकि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स मेटल्स कैन होल्ड अ लार्जर वेट विदाउट ब्रेकिंग. ये बहुत बड़ा वेट ले सकता है बिना टूटे हुए, लेकिन नन मेटल ऐसा नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नन मेटल्स. पहले आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज नन मेटल्स, तो दोज एलिमेंट्स विच आर नन सोनरस, नन लस्ट्रस, नन मेलिएबल, non-conductor of heat and electricity are sonorous. It means non-metals show opposite property to the metals. ये metal के just opposite property show करते हैं. Okay. जैसे देखिए, non-metals are found in all physical state. Actually they are found in all physical state. It means non-metals are found in liquid state, solid state and gaseous state. Suppose solid state, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सॉलिड स्टेट, आयोडीन, सल्फर. एंड वन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन. ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. एंड वेरी अदर मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा. ओके. तो these elements are non-metals are found in all three physical state. They are found in solid state, they are found in liquid state and they are also found in gaseous state. Next, they are non-sonorous, non-lustrous, non-malleable, non-ductile and poor conductor of heat and electricity. They show just opposite behavior to the metals. ये metals के जस्ट अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं, उल्टा एकदम. कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन मीन्स कि ऐसे जो मेटल की तरह भी बिहेवियर करते हैं. जैसे आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल. आयोडीन लस्ट्रस है, मतलब चमकता है. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तो ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं. अब देखिए नेक्स्ट आता है मेटलॉयड. मेटलॉयड या सेमी मेटल्स. दीज एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो दोज एलिमेंट्स शोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉयड्स. या इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं. These elements have intermediate properties between metals and non-metals. For example, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, etc.
These all elements are semi metals या metalloids. Okay. Next, so we have discussed about metal, non-metal and metalloids. Now second class of pure substances is compound. Compound is second class. First one is element. So compound. A compound is a substance composed of two or more different elements chemically combined with one another in a fixed proportion. For example, water is a compound which chemical formula is H2O. वाटर का chemical formula H2O है. So this water molecule is made up of two atom of hydrogen and one atom of oxygen. When hydrogen gas react with oxygen gas, they form liquid H2O, dihydride of oxygen. Okay, so when these two elements show different property when they are separate, but when they are combined in a fixed proportion together, they form water molecule. Water molecule shows a definite fixed characteristic properties. Okay, that is why they are known as compound. Here, यहाँ पर देखिए two hydrogen react with oxygen. Hydrogen is found in gaseous state. Oxygen is also found in gaseous state. When they react together, they form compound water. Water is a compound. Hydrogen is element and oxygen is element. So this is water is a compound having fixed ratio of hydrogen. There are two hydrogen atom and one oxygen atom. There are several other examples of compounds like methane. Methane have one carbon and four hydrogen. मेथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है. यही होगा, कहीं से भी आप मेथेन प्राप्त करें. शुगर जो चीनी हम लोग घर में खाते हैं, इसमें क्या होगा? देयर आर 12 कार्बन एटम, 22 हाइड्रोजन एटम एंड 11 ऑक्सीजन एटम. कार्बन इज अनदर एलिमेंट, हाइड्रोजन इज अनदर एलिमेंट, ऑक्सीजन इज अनदर एलिमेंट. They combine in a fixed proportion and form a molecule या compound known as sugar. Similarly, glucose C6H12O6. Carbon 6 atom of carbon, 12 atom of hydrogen and 6 atom of oxygen. Similarly, carbon dioxide is also a compound. Silicon dioxide, that is sand. Sand is also a compound. Salt जो नमक आप खाते हैं, ये भी एक compound है. Calcium carbonate is also a compound. Okay, many more, there are many more examples are compounds. Next बढ़ते हैं हम physical changes. Physical changes. अब देखिए physical changes क्या है. Those changes in which only physical properties like color, hardness, density, mass, physical state like solid, liquid, gas. So those changes in which only the physical properties of substances change but no new substance are formed are called physical change. This is the change where no new substance are formed. यहाँ पर कोई नया substance नहीं बन रहा है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वही रहेगा, लेकिन उसका हो सकता है मास, डेंसिटी, कलर या शेप चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है. नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पोररी. ये टेम्पोररी होता है, फिर रिवर्स बैक हो सकता है एंड रिवर्सिबल. ओके, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस में क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट. H2O यहाँ भी है, जब मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाएगा हीट लेकर के, तो भी वहाँ पर H2O होगा. लिक्विड वाटर में भी H2O होगा. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर को आप ठंडा कर देंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, आइस बन जाएगा. तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस. नेक्स्ट देखिए, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास को तोड़ देते हैं तो भी फिजिकल चेंज ही है. मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग
विथ सल्फर, सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग को मिला दीजिए तो भी फिजिकल चेंज होगा, कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे। इसी तरह मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ सॉइल या सैंड, इट इज़ आल्सो अ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं केमिकल चेंज। देखिए और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। तो दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ओके, यहाँ पर नया सब्सटेंस बनेगा व्हेन वन या मोर देन when two या more than two substances react together they form new substance and such type of changes is known as chemical reaction। इसको chemical reaction भी कहते हैं या physical changes भी कहते हैं। यहाँ नया substance बनता है, one substance react to another to form a new substance। okay, and this type of changes is permanent change, ये एक permanent change है। okay, और जनरली इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, परमानेंट चेंज, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, दे आर नॉट रिवर्सिबल बट दे आर इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है। ओके, फॉर एग्जांपल कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्री को कट करते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस रुक जाएंगे और ट्री का ग्रोथ रुक जाएगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, दैट इज वाई दिस इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट बढ़ रहा है मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, देयर आर सो मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाट हैपन व्हेन आयरन Fe react with moisture, oxygen और हाइड्रोजन वाटर। so when iron react with moisture, that is oxygen and water, they form hydrated ferric oxide, that is the rust, this is red in color and you cannot reverse back the rusting of iron। आयरन जो रस्ट बन गया है, रस्ट से फिर आयरन नहीं ले सकते आप। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, दिस इज आल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो खाना हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है उसको फिर से हम खाना नहीं बना सकते, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चे आम का पका आम बनना या जितने भी फल बन रहे हैं वो भी एक तरह से केमिकल चेंज हैं, क्योंकि पके हुए आम को फिर कच्चा आम आप नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट बर्निंग ऑफ एलपीजी, केरोसिन, पेपर, वुड या एनीथिंग, किसी चीज़ को जलाते हैं, व्हेन वी बर्न पेपर दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, एस पार्टिकल्स इज आल्सो फॉर्म्ड। तो इन सबको मिला दें तो फिर हम पेपर नहीं बना सकते, दैट इज़ वाई दिस इज द केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कोरोजन एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम आ गए सेपरेशन ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट, separating the component of a mixture। okay, any heterogeneous mixture can be separated out various physical methods, simple methods like hand picking, sieving, filtration, magnetic separation। okay, sometime, so these all are the physical process through which we can separate the different component present in a mixture। you also study about it in your class 6। okay, so next देखिए, in standard 9 we have to discuss about evaporation, this is also a method of separation of substances from a mixture। centrifugation, separation by separating funnel, sublimation, chromatography, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इतने आपको इसमें आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। ओके, तो वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। पहला है इवेपोरेशन। ओके,
तो इन योर लोअर क्लास यू हैव ऑलरेडी नो दैट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्जन हो जाना हीट के प्रेजेंस में, इसको कहेंगे हम इवेपोरेशन। ओके, तो दिस इज द मेथड इन विच व्हेन in non-volatile solute particle dissolved in a solvent which is volatile, we have to separate these solute particle on heating या without heating, we can separate it out. Okay, जैसे मान लीजिए sand dissolved in water, sand is a solute particle which is non-volatile, ये वोलाटाइल नहीं है, लिक्विड से भाप नहीं बनेगा इतना जल्दी। बट वाटर विच इज़ अ सॉल्वेंट, इट इज़ अ वोलाटाइल। वाटर क्या है, जैसे जैसे आप हीट करेंगे वैसे वैसे वाटर वेपराइज होने लगेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा और सारा वाटर बाहर निकल जाएगा और जो सैंड है चाहे साल्ट है वो चाइना डिश में या जिसमें आप पॉट में गर्म करते हैं उसमें बच जाएगा। सो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज left as a solid residue when volatile liquid solvent has evaporated। ये सारा volatile solvent evaporate हो जाएगा तो केवल बच जाएगा क्या, solid residue जैसे salt और water बाहर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह देखिए, by this process we obtain common salt sodium chloride from the sea water। सी वाटर में बहुत सारे 70% जो साल्ट है 100% में 70% सोडियम क्लोराइड है उसमें, और हम इसको इवेपोरेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं। ये सलाइन वाटर को हम क्या करते हैं, उथले हुए सैलो पीट में रखते हैं और सन के हीट के द्वारा सारा वाटर एयर में चला जाता है और साल्ट बच जाता है। तो बाई इवेपोरेशन वी ऑब्टेन कॉमन साल्ट। एक्चुअली दिस कॉमन साल्ट आल्सो हैव सम impurity, तो बाई क्रिस्टलाइजेशन वी कैन गेट अ प्योर क्रिस्टल ऑफ दिस साल्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, वी कैन सेपरेट आउट ड्राई डाई मतलब होता है, देखिए जो इंक में कलर है वो कई तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, तो इंक से हम कलर को अलग कर सकते हैं। कैसे, उसको भी इवेपोरेशन करके एक वाश ग्लास में इंक रख देंगे और डायरेक्ट उसको नहीं हीट करेंगे, उसको वाटर बाथ में हीट करेंगे, धीरे धीरे सारा जो इंक में वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा और डाइज जिसके कारण उसका कलर है वो सर वाच ग्लास में बच जाएगा। नेक्स्ट है देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम कोलाइडल सोल्यूशन। ये कोलाइडल पार्टिकल के कोलाइडल सोल्यूशन से सोल्यूशन को अलग करने के लिए यूज होता है। ओके, बिकॉज दीज कोलाइडल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन नॉट बी सेपरेट आउट बाई फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते, इसके कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, चर्नर या सेंट्रीफ्यूग यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन बोथ आर द सेम टर्म। चर्निंग का मतलब होता है मथना और सेंट्रीफ्यूगेशन भी मथना है। ओके, जैसे दही को मथ करके क्रीम निकाल लेते हैं और बटर मिल्क छोड़ देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक प्रिंसिपल है, यहाँ सिद्धांत है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर हैवियर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रेपिडली। जब हम चर्नर को बहुत तेज़ी से चलाते हैं तो हैवियर पार्टिकल नीचे आता है और लाइटर पार्टिकल ऊपर चला आता है। जैसे डेयरी मिल्क में ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन खूब यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, मिल्क से आप देखते होंगे टोन्ड मिल्क लेते हैं और इसी तरह मिल्क से फुल क्रीम मिल्क लेते हैं। तो जो टोन्ड मिल्क होता है उसमें फैट बहुत कम होता है, तो उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जब सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट कर देते हैं तो सारा क्रीम ऊपर आ जाता है और हैवियर लिक्विड पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाता है। इस तरह हम फैट को कम कर लेते हैं। और करीब टोन्ड मिल्क जो नीले कलर का टेट्रा पैक है उसमें 3% के आसपास फैट होता है। ओके, और फुल क्रीम में तो ज़्यादा क्रीम होता है जो रेड कलर के होते हैं। सो दिस जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन एप्लीकेशन इसका है, एप्लीकेशन या यूजेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन।
It is used in diagnostic laboratory for blood and urine test, used in dairy and home to separate cream from milk. During, okay, so देखिए during centrifugation heavier liquid milk force to come to the bottom and lighter fat या cream या butter stay on the surface. ये बटर ऊपर आ जाता है और जो मिल्क है वो नीचे चला जाता है. इस तरह हम अलग करते हैं. ये दिस सेंट्रीफ्यूगेशन इज आल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर. इस बरसात के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं तो उसको मशीन में ड्रायर में लगा देते हैं. ड्रायर में सारा जब तेज़ी से ड्रायर चलता है, फैन उसका चलता है तो सारे पानी बाहर निकल जाता है सेंट्री फ्यूगल फोर्स के कारण, जो कि हैवियर है, और क्लॉथ जो आपका है जो वो सूख जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल, अब देखिए सेपरेटिंग फनल क्या है. इट इज़ अ फनल टाइप स्ट्रक्चर, ओके, इन विच वी कीप टू मिसिबल या टू या मोर देन टू इमिसिबल लिक्विड. तो ये किसके लिए यूज होता है. दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन दैट द प्रिंसिपल दैट व्हेन मिसिबल इमिसिबल का मतलब अघुलनशील, जो एक दूसरे में मिक्स ना हो. इमिसिबल लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड, दे सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. जब टू इमिसिबल लिक्विड जैसे वाटर एंड ऑयल, ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, इनको जब सेपरेटिंग फनल में रखेंगे तो क्या होगा. वाटर बीइंग हैवियर या डेंसर देन ऑयल, दे फॉर्म लोअर लेयर and oil which is lighter from upper layer. okay, तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए सेपरेशन के एक एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ है. मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड ऑयल कैन बी सेपरेटेड आउट बाय सेपरेटिंग फनल. ओके, अब व्हेन वी pour this mixture into the funnel and keep it undisturbed for few times या few hours, kerosene form upper layer and heavier water form lower layer. Water is denser than kerosene form upper layer and water form lower layer. okay, तो इस तरह क्या होगा. ये देखिए ये है सेपरेटिंग फनल. दिस इज सेपरेटिंग फनल. ओके, दिस सेपरेटिंग फनल हैज वन स्टॉप कॉक. व्हेन दीज टू लेयर्स आर फॉर्म्ड, व्हाट विल हैपन. विथ हेल्प ऑफ स्टॉप कॉक वी सेपरेट आउट वाटर फर्स्ट. हम क्लोजली देखेंगे कि वाटर नीचे आया, उसके बाद इसको जैसे केरोसिन नीचे आएगा वैसे ही उसको बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, वाटर को पहले एक बीकर में अलग कर लेंगे और केरोसिन को दूसरे बीकर में अलग कर लेंगे. ओके, और इस तरह हम दोनों को अलग कर लेंगे. तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है. ओके, और इसको हम इस तरह अलग कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर. द लाइटर स्लैश इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. जो स्लेज होता है इम्प्यूरिटीज वो ऊपर तैरता है और जो हैवी मेटल्स है आयरन के जो पिघले हुए फॉर्म में होते हैं नीचे आ जाते हैं. तो इस तरह हम वहाँ भी सेपरेशन करते हैं. चलिए आज के लिए बस इतना ही. अगला हम पार्ट 3 भी इस चैप्टर को उस पार्ट में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.